حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم، BBN خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آفرین شمیم۔ خبرنامہ کی شروعات میں ہیڈ لائنز۔ منحرف ارکان پر کارروائی، سپریم کورٹ کا تلنگانہ اسمبلی اسپیکر کو آخری 3 ہفتوں کا الٹیمیٹم، مدت ختم ہونے پر توہین عدالت کی ہوگی کارروائی۔ نامپلی میں تلنگانہ فورنسک سائنس لیبارٹری میں اچانک آگ، اہم فائلیں اور کمپیوٹرز متاثر ہونے کا خدشہ، لیب آتشزدگی پر KTR کے سنگین شکوک، ووٹ فار نوٹ کیس کے شواہد مٹانے کا خدشہ۔ نظام آباد میں جلسے کے دوران CM ریونت ریڈی کا BJP و BRS پر ساز باز کا سنگین الزام، اقلیتوں کے 4% تحفظات کے تحفظ کا کیا عزم۔ فرض کی راہ میں جان قربان کرنے والے اہلکاروں کے خاندانوں کے لیے تلنگانہ حکومت کا بڑا قدم، CM نے شہید کانسٹیبلز کے لاحقین کو 1 کروڑ روپے کے چیکس کیے حوالے۔ مذہب کی بنیاد پر ریزرویشن آئین کے خلاف 4% مسلم کوٹے پر BJP کا اعتراض، جی کشن ریڈی کا CM ریونت ریڈی پر اقلیتی خوشنودی کی سیاست کا الزام۔ اب خبریں تفصیل سے۔ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی 17 فروری کو بایو ایشیا 2026 کانفرنس کا افتتاح کریں گے، جو لائف سائنسز اور ہیلتھ ٹیکنالوجی کے شعبے سے وابستہ اداروں کے زیر اہتمام منعقد کی جا رہی ہیں۔ اس 23ویں سالانہ 2 روزہ کانفرنس میں ملک اور بیرون ملک کے ممتاز بایو ٹیک، فارما اور ہیلتھ ٹیکنالوجی لیڈر شرکت کریں گے، جبکہ مرکزی وزراء پیوش گوئل اور اشونی وشنو کے علاوہ ریاستی وزیر IT ڈی سریدھر بابو کی شرکت بھی متوقع ہے۔ کانفرنس کے دوران بایو ٹیکنالوجی، فارماسیوٹیکلز، ہیلتھ کیئر، میڈی ٹیک، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور دیگر جدید شعبوں میں ہونے والی ترقی پر غور کیا جائے گا۔ اس موقع پر تلنگانہ رائزنگ ویژن 2047 کے موضوع پر ایک خصوصی سیشن منعقد ہوگا، جس کے ذریعے ریاست کی مستقبل کی ترقی کا جامع روڈ میپ پیش کیا جائے گا، جبکہ بین الاقوامی یونیورسٹیوں کے ماہرین اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے نمائندے بھی اس کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ سپریم کورٹ نے تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر جی پرساد کمار کو منحرف ارکان اسمبلی کے خلاف کارروائی مکمل کرنے کے لیے آخری طور پر 3 ہفتوں کی مہلت دیتے ہوئے سخت انتباہ دیا ہے کہ مقررہ مدت میں فیصلہ نہ ہونے کی صورت میں توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے گی۔ جسٹس سنجے کورال اور جسٹس AG میسی پر مشتمل بینچ نے BRS ارکان اسمبلی کی جانب سے دائر توہین عدالت کی درخواست کی سماعت کے دوران یہ واضح کیا کہ مزید کسی توسیع کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اسپیکر کی جانب سے پیش ہوئے سینئر وکیل ابھیشیک مانو سنگھوی نے عدالت کو بتایا کہ 10 میں سے 8 ارکان اسمبلی کے خلاف تحقیقات مکمل کر کے فیصلہ سنایا جا چکا ہے، جبکہ 2 ارکان کے معاملات زیر غور ہیں۔ تاہم BRS کے وکلا وکیل موہت راؤ نے موقف اختیار کیا کہ دونوں ارکان کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہیں اور مزید تحقیقات کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایک رکن BRS کے ٹکٹ پر منتخب ہونے کے بعد کانگریس کے ٹکٹ پر لوک سبھا انتخابات میں حصہ لے چکا ہے، جبکہ دوسرے رکن کی دختر نے کانگریس کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا اور متعلقہ رکن نے کانگریس کے لیے انتخابی مہم بھی چلائی۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد اسپیکر کو 3 ہفتوں میں کارروائی مکمل کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ ناکامی کی صورت میں توہین عدالت کی کارروائی ناگزیر ہوگی۔ حیدرآباد کے ریڈ ہلز نامپلی میں واقع تلنگانہ فورنسک سائنس لیبارٹری میں ہفتے کی صبح تقریباً 10 بجے اچانک آگ بھڑک اٹھنے سے سنسنی پھیل گئی، جب عمارت سے گہرے دھوئیں کے بادل اٹھتے دکھائی دیے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور فائر بریگیڈ کا عملہ فوری طور پر موقع پر پہنچا اور 5 فائر انجنوں کی مدد سے کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا گیا۔ تلنگانہ فائر DG وکرم سنگھ کے مطابق
आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी, जिसके नतीजे में लेबोरेटरी में मौजूद कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स और हार्ड डिस्क को नुकसान पहुंचा, जबकि कई अहम फाइलों के मुतासिर होने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। ताहम नुकसानात की मुकम्मल तफसीलात ताहाल सामने नहीं आ सकी है। बताया गया है कि वाक़े के वक्त लैब में मौजूद 4 मुलाजमीन ने बरवक्त बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। आतिशबाजी के बाद इलाके में अवाम का हुजूम जमा हो गया, जिससे ट्रैफिक मुतासिर हुई, जिस पर ट्रैफिक पुलिस ने रास्ते तब्दील किए, जबकि इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हुक्काम ने बताया कि मौसम गर्मा के आगाज के पेश नज़र आइंदा दिनों में रिहायशी, तिजारती और सरकारी इमारतों में फायर सेफ्टी मुआयना मुहिम शुरू की जाएगी, ताकि ऐसे वाक़यात को रोका जा सके। वाक़े के बाद मुताल्लिक़ा महकमे हाई अलर्ट पर हैं और हिफाजती इंतजामात को मज़ीद सख्त किया जा रहा है। पुलिस हुक्काम आग से होने वाले नुकसानात और वजूहात की मज़ीद जांच में मसरूफ़ हैं। చాలా ఓల్డ్ బిల్డింగ్ ఉంది. దాదాపు 1978-1980లో ఎప్పుడు కట్టారు. గ్రౌండ్ ప్లస్ 2 స్టోరీస్ ఈ స్ట్రక్చర్ ఉంది. అయితే ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో చివరిలో ఒక కంప్యూటర్ రూమ్ ఉంది, దాంట్లో ఒక ఎంసీబీ స్విచ్ బోర్డు ఉంది, ఎలక్ట్రికల్ బోర్డు. అక్కడ నుంచి ఈ ఫైర్ మొదలైంది. మా అనుమానం ప్రైమరీ ఫేస్ ఇట్ అపియర్స్ టు దట్ ఫైర్ కాల్ వచ్చింది. ఈ మధ్యలో ఇక్కడ ఉన్న ఎఫ్ఎస్ఎల్ సిబ్బంది వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఈ ఫైర్ ఎస్టింగ్విషర్స్ ఉన్నాయి. దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఫైర్ ఎస్టింగ్విషర్స్, అది కూడా అన్ని పని చేస్తున్నాయి. హ్యాండ్ హెల్డ్ ఫైర్ ఎస్టింగ్విషర్స్ ఉంటాయి. అది తీసుకొని వాళ్ళు కూడా ఫైర్ కంట్రోల్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు. మా వాళ్ళు వచ్చి వెంటనే ఇది కంట్రోల్ చేయగలిగారు. ఓన్లీ స్మోక్ స్ప్రెడ్ అయింది, స్మోక్ కూడా మనం కంట్రోల్ చేశాము. ఎటువంటి దీంట్లో హ్యూమన్ లాస్ ఆఫ్ లైఫ్ క్యాజువాలిటీ ఏం జరగలేదు. అందరూ సేఫ్గా ఇక్కడ నుంచి ఇవాక్యువేట్ అయ్యారు. ఇది ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ అండి. దాంట్లో రకరకాల ఐటమ్స్ ఉంటాయి ఫోరెన్సిక్ టెస్టింగ్ కోసం, ఎగ్జామినేషన్ కోసం. డిఫరెంట్ శాంపల్స్ విల్ ఆల్సో బి దేర్. అయితే ఈ పర్టికులర్ రూమ్లో కొన్ని కంప్యూటర్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో ఫోరెన్సిక్ సంబంధించిన వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేస్తారు, అనాలిసిస్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఇది ఒకటి చెప్తున్నాను, ఈ ఎఫ్ఎస్ఎల్ అంటే ఇట్ ఈస్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ బిల్డింగ్. ఇమీడియట్గా వెంటనే నేను మా ఆఫీసర్స్కి, సిబ్బందికి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చేసాము. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్కి కూడా మేము టేకప్ చేస్తున్నాము. హైదరాబాద్ చుట్టూ జిహెచ్ఎంసీలో ప్రయారిటీ మీద ఎక్కడైనా ఈ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి, ఆ అన్ని బిల్డింగ్స్కి మేము మొత్తం ఎగ్జామిన్ చేసుకొని ఆ బిల్డింగ్స్ సంబంధించిన వాట్ ఈస్ ద ఫైర్ ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఫైర్ అరేంజ్మెంట్స్ ఎగ్జిస్టింగ్, అది మేము ఎగ్జామిన్ చేసి పరీక్షిస్తాము. టీమ్స్ కూడా పోతాయి, విజిట్ చేస్తారు, సర్ప్రైజ్ ఇన్స్పెక్షన్ కూడా చేస్తారు. ప్రతి ఇంపార్టెంట్ గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్ ఏదైనా డిపార్ట్మెంట్ ఉంటే ఆ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న సిస్టమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఒకవేళ ఉంటే ఆ వర్కింగ్ కాదా, అది ఒకసారి మేము రివ్యూ చేస్తాము. అసలు దెర్ ఇస్ నో ఫెసిలిటీ, దెర్ ఆర్ నో ఫైర్ ఫైటింగ్ అరేంజ్మెంట్స్, అక్కడ ఆ కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్స్కి వెంటనే ఆ ఫైర్ ప్రివెంటివ్ మెజర్స్, ఫైర్ సేఫ్టీ మెజర్స్ పెట్టమని మేము ఫాలోఅప్ చేస్తున్నాం. ఈ మధ్యలో కొన్ని రోజుల కింద నాంపల్లిలో జరిగింది. అక్కడ మేము ప్లస్ హైడ్రా ప్లస్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్, జిహెచ్ఎంసీ, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్, ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ కలిపి కూడా ఇది మనము చాలా దానికి ఇన్స్పెక్షన్ చేసాము. సర్ప్రైజ్ విజిట్స్ కూడా చాలా మందికి నోటీస్ కూడా ఇచ్చాము. ఇక్కడ దాన్ని ఫాలో చేస్తాను. ఇదే ఎక్సైజ్లో ఇప్పుడు సమ్మర్ సీజన్ వస్తుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ 3-4 మంత్స్కి మనము చాలా జాగ్రత్త ఉండాలి. नामपल्ली में वाक़ तेलंगाना स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में पेश आए आतिशबाजी के वाक़े पर बीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए शुकूक व शुबहात का इजहार किया है। केटीआर ने अपने बयान में कहा कि इन्हें अंदेशा है कि मशहूर वोट फॉर नोट केस से मुताल्लिक़ अहम वॉइस रिकॉर्डिंग्स को तबाह किया जा रहा है और साथ ही फ़ोन टैपिंग जैसे मुबैना सियासी मुकदमात में शवाहिद की कमी को छुपाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि इस तरह का अचानक आतिशबाजी का वाक़या महज इत्तेफाक है या किसी मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा है, जिसका मकसद कांग्रेस हुकूमत की जानिब से खड़े किए गए सियासी मामलात पर सबूतों के फुक़दान पर पर्दा डालना है। केटीआर ने इस बयान के बाद फॉरेंसिक लैब आतिशबाजी का मामला मज़ीद सियासी रंग इख्तियार कर गया है और मुख्तलिफ हलकों में तहक़ीक़ात के मुतालबात जोर पकड़ने लगे हैं। बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में निजामाबाद में मुनाक़दा एक जलसे आम से खिताब करते हुए तेलंगाना के वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी ने बीजेपी और बीआरएस पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं और कहा कि दोनों जमातों ने आपस में साज़बाज़ कर रखी है, जिसके तहत नतीजे में कालेश्वरम प्रोजेक्ट में मुबैना बेज़ाब्तगियों के बावजूद साबिक़ वज़ीर आला केसीआर और दीगर बीआरएस कायदीन के खिलाफ मरकज़ी हुकूमत कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने मरकज़ को खुला चैलेंज दिया कि अगर वाकई बेकायदगियाँ हुई हैं तो केसीआर, हरीश राव व दीगर जिम्मेदार कायदीन को गिरफ्तार करके दिखाया जाए। वज़ीर आला ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी कायदीन तेलंगाना की तरक्की में ताउन करने के बजाय रुकावटें खड़ी कर रहे हैं और रियासत के लिए मरकजी
फंड्स दिलाने में नाकाम रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने दावा किया कि कांग्रेस हुकूमत रियासत की हमाजहत तरक्की के लिए मुसलसल काम कर रही है और अक़लियतों के लिए 4% तहफ़्फ़ुज़ात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी भरपूर जद्दोजहद कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा अक़लियतों को इनका हक दिया है और अवाम को चाहिए कि वो बीजेपी और बीआरएस को मुनासिब सबक सिखाएं। जगह पे मुसलमानों के और 4% जो रिजर्वेशन हमने दिया, 4% रिजर्वेशन बचाने के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। मुसलमानों को जो जब जरूरत है सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने दिया। इस देश को राष्ट्रपति मुसलमान को कांग्रेस पार्टी ने बनाया। 7 मुख्यमंत्रियों को इस देश में कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को बनाया। मेरा कैबिनेट में शब्बीर भाई को मंत्री बनाने के लिए निजामाबाद अर्बन चुनाव में हम चुनाव लड़वाए। मैं कामारेड्डी, मेरे लिए शब्बीर भाई ने कुर्सी छोड़ा था कामारेड्डी असेंबली में, मगर हम केसीआर को हराए, हम नहीं जीत सका। आप लोग शब्बीर भाई को नहीं जिताया। फिर भी मुसलमानों को मंत्री बनाने के लिए मोहम्मद अजहरुद्दीन को बिना एमएलए बिना एमएलसी हम मंत्री बनाए। कल परसों हम उनको भी एमएलसी बनाने वाले हैं। इसीलिए इतने सारे 8 मुसलमान माइनॉरिटियों को हम लोग कारपोरेशन चेयरमैन बनाए। मतलब ये सरकार में बराबर मुस्लिम माइनॉरिटी को हिस्सा दे दिए। उनका हक है, उन लोगों का हक उनको पहुंचा दिए। इसीलिए आज कोई मुसलमान के भाई रेवंत को रेवंतुद्दीन कहे तो भी मेरे कोई परवाह नहीं है। मैं इसको अच्छी तरीका से मैं स्वीकार करता हूं। भारतीय जनता पार्टी रामचंद्र राव रेवंतुद्दीन अन्नाవు కదా, నాకేం ప్రాబ్లం లేదు। రేవంత్ గౌడ్ అయినా, రేవంత్ మాదిగ అయినా, రేవంత్ ముదిరాజ్ అయినా, రేవంత్ యాదవ్ అయినా, సర్దార్ రేవంత్ సింగ్ అయినా, లేకపోతే రేవంతుద్దీన్ అయినా నాకేమీ అభ్యంతరం లేదు। అన్ని కులాలను అన్ని మతాలను సమన్వయం చేసుకొని రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించి రాష్ట్ర ప్రజలకు సంక్షేమాన్ని అమలు చేసి రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పదం వైపు నడిపించి దేశంలోనే నెంబర్ 1 రాష్ట్రంగా తెలంగాణను నిలబెట్టే అవకాశం 4 కోట్ల ప్రజలు ఇచ్చిండ్రు। నేను గర్వంగా ఫీల్ అవుతా రామచంద్రరావు గారు। కానీ నేను నిన్ను ఒక్క మాట అడగదలుచుకున్నా, నీ పక్కల కూర్చున్న కిషన్ రెడ్డి ఎవరయ్యా? ఎందుకు కేసీఆర్ని కాపాడుతున్నాడే? तेलंगाना हुकूमत ने फर्ज की अदायगी के दौरान जान कुर्बान करने वाले एहलकारों के खानदानों के साथ अपनी मजबूत यकजहती का इजहार करते हुए एक्स ग्रेशिया इमदाद फराहम की है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने निजामाबाद के डिचपल्ली मंडल में मुनाक़दा अवामी इजलास के दौरान शहीद एक्साइज कांस्टेबल गाजुला सोमैया की वालिदा और पुलिस कांस्टेबल प्रमोद की अहलिया को 1-1 करोड़ रुपए के इमदादी चेक्स हवाले किए। एक्साइज कांस्टेबल सोमैया स्मगलरों के हमले में, जबकि पुलिस कांस्टेबल प्रमोद गुज़िश्ता साल अदालत ले जाते वक्त एक मुजरिम के चाकू से हमले में शहीद हुए थे। इस मौके पर जज्बाती मनाजिर देखने में आए। लौहखीन ने आंसुओं के साथ वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला की हिदायत पर जिले कलेक्टर ने तमाम रस्मी कार्रवाइयों को नज़रअंदाज करते हुए फौरी तौर पर जिले फंड से इमदादी रकम जारी की, जिसे पुलिस और दीगर महकमों के अहलकारों ने हुकूमत का इंसान दोस्त और हौसला अफजा इक़दाम करार दिया। मरकजी वजीर व तेलंगाना बीजेपी एमपी जी किशन रेड्डी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर सख्त सियासी हमला करते हुए कांग्रेस पर मजहब की बुनियाद पर सियासत, अक़लियती खुशनुदी और समाजी इंसाफ के साथ धोखाधड़ी का इल्ज़ाम आयद किया है। किशन रेड्डी ने मजहब पर मबनी रिजर्वेशन से मुताल्लिक़ वज़ीर आला के बयानात को आइन के मुनाफी करार देते हुए कहा कि कांग्रेस की सियासत अब तरक्की और गुड गवर्नेंस के बजाय सिर्फ वोट बैंक तक महदूद हो चुकी है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी माजी में खुद ये कह चुके हैं कि कांग्रेस और मुसलमान एक दूसरे के मुतरादिफ हैं और अब 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को मुस्तकिल बनाने की कोशिश इसी सोच का सबूत है। किशन रेड्डी के मुताबिक कांग्रेस एक तरफ मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन दे रही है तो दूसरी तरफ मुसलमानों को पसमानदा तबकात में शामिल करके इजाफी कोटा देने की कोशिश कर रही है, जिससे असल बीसी तबकात के हुकूक मुतासिर हो रहे हैं।
उन्होंने जात पात पर मबनी सर्वे की शफाफियत पर भी सवाल उठाते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि अदद-ओ-शुमार में हेरा फेरी के जरिए हकीकी पसमानदा तबकात को नुकसान पहुँचाया गया। मरकजी वजीर ने वाज़ेह किया कि बीजेपी आइन, मसावात और हकीकी समाजी इंसाफ के साथ खड़ी है और तेलंगाना की अवाम आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस को इस पॉलिसी का सख्त जवाब देंगी। बीआरएस के सीनियर रुकने असेंबली व साबिक रियासती वजीर टी हरीश राव ने दावा किया है कि के चंद्रशेखर राव के दौरे हुकूमत में कालेश्वरम प्रोजेक्ट से किसानों की फसलें बहुत शानदार हुई थी और अराजी की कीमतों में भी इजाफा हुआ था। आज कांग्रेस के दौरे हुकूमत में किसानों की फसलें मुतासिर हो रही हैं और ज़मीनों के कीमतों में भी गिरावट आई है। हरीश राव ने बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में अवामी जलसे से खिताब करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस दौरे हुकूमत में रियासत की तरक्की मुतासिर होकर रह गई है और रियासत के किसान मसाइल का शिकार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर के दौरे हुकूमत में कालेश्वरम प्रोजेक्ट तामीर किया गया था, जिससे किसानों को बड़ी मदद मिली थी। अराजियात की कीमतों में भी इजाफा हुआ था। कांग्रेस की गलत हुक्मरानी की वजह से किसान मसाइल का शिकार होकर रह गए हैं और ज़मीनात की कीमतों में भी गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि अवाम को सोचना चाहिए कि इनके लिए किसकी हुक्मरानी ज़्यादा बेहतर रही थी। కేసీఆర్ కాళేశ్వరం కట్టింది కనుక ఇలా బంగారు మూల పంటలు పండుతున్నాయి మా మెదక్ జిల్లాలో. బంగారు మూల మా రైతులు బతుకుతున్నారు. ఇలా భూముల ధరలు పెరిగినాయి కేసీఆర్ వచ్చినాక. అరే మీకు తెలియదా చెల్లె, అప్పుడు ఇదే గజ్వేల్లో 5 లక్షలకు 10 లక్షలకు భూమి కేసీఆర్ వచ్చినాక ₹1 కోటి పెరిగినాయా లేవా? భూముల ధరలు విలువలు పెరిగినాయా లేవా? కాంగ్రెస్ వచ్చినాక ఏమైంది? భూముల ధరలు పాతాళానికి, బంగారం ధరలు ఆకాశానికి అయినాయా లేవా? రేవంత్ రెడ్డి ఏమన్నాడు? కళ్యాణ లక్ష్మి ₹1,00,000 ఇచ్చిండు కేసీఆర్, నేను తులం బంగారం కలుపుతా. కలిపిండు ఎవరికన్నా? వచ్చిన ఎవరికన్నా? ఆ కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కు కూడా చక్కగొత్తలేదు. బంగారం ఇయ్యలేదు కానీ బంగారం ధరలు మాత్రం ఆకాశాన్ని అంటున్నాయి. భూముల ధరలు పాతాళానికి అంటున్నాయి. ఎవరైనా బిడ్డ పెండ్లు ఉన్నది, ఇంట్లో లగ్గం ఉన్నది, దవాఖాన ఉన్నది అని ఏదైనా ఒక అర్ధ ఎకరం అమ్ముకుందామంటే అసలు కొనటోడు ఉన్నాడా? ప్లాట్ అమ్ముకుందామంటే ఎవరైనా కొనటోడు ఉన్నాడా? ఇలా గజ్వేల్లో 100-150 షటర్లు కిరాయికి పడ్డాయి. టూలెట్ బోర్డులు కనబడుతున్నాయి. గిరాయికి అయితే లేదు. గజ్వేల్ని ఆగం చేసిండు. बीआरएस के एमएलसी दासुजू श्रावण कुमार ने इलेक्शन कमीशन के रवैये पर सख्त बरहमी का इजहार किया है और इल्जाम आयद किया कि इलेक्शन कमीशन कांग्रेस हुकूमत के दबाव में आकर जानिबदाराना तर्ज अमल इख्तियार कर रहा है। उन्होंने कहा कि बल्दियाती व इंतखाबी मुहिम के दौरान बीआरएस के मुंतखब नुमाइंदे अरकान असेंबली और उज़रा को अवामी मुहिम चलाने से रोका जा रहा है, जबकि कांग्रेस के उज़रा और कायदीन बीआरएस कारकुनों को धमकाने और गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। दासुजू श्रावण कुमार ने सवाल किया कि ऐसे हालात में पुलिस और इलेक्शन कमीशन के ओहदेदार खामोश तमाशाई क्यों बने हुए हैं। उन्होंने इस पूरे मामले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और खबरदार किया कि अगर ये जानिबदारी बंद ना की गई तो बीआरएस सड़कों पर एहतजाज करने से भी गुरेज नहीं करेगी। ప్రచారం కూడా చేసుకోనియొద్దని చెప్పని మల్లారెడ్డి మీద దాడి చేస్తారు. నువ్వెట్లా ప్రచారం చేస్తావని చెప్పని హరీష్ రావు గారిని అడుగడుగున అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు. వారిపైన కూడా పెద్ద ఎత్తున దాడులు చేసేటువంటి ఒక ప్రయత్నం చేసినారు. దానికి ప్రోత్సాహం ఇచ్చింది స్థానికంగా ఉన్న మంత్రులు అని చెప్పని వార్తలు వస్తూ ఉన్నాయి. గుడ్డి గుర్రం పళ్ళు దొంగతా ఉందా ఎన్నికల సంఘం పోలీసులను మేము అడుగుతా ఉన్నాం. 2 మాజీ మంత్రుల పైన ఇవాళ దాడులు జరిగేటువంటి ఒక పరిస్థితి దిగజారింది అంటే ఈ రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలు ఉన్నాయా? ఈ రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు సజావుగా సాగుతాయా? ఎన్నికల సంఘం రాసిచ్చేయరు, లేకపోతే మొత్తానికి కాంగ్రెస్ పార్టీకి అన్ని మున్సిపాలిటీలు మరిగా ఎందుకు ఎన్నికలు ఇవంతా ₹100 కోట్ల ఖర్చు పెట్టి ఇంత పెద్ద ప్రభుత్వ యంత్రాంగం, ప్రజలు, లైన్లు, ప్రచారాలు ఎందుకు మరిగా? మీకు అంత కాంగ్రెస్ పార్టీకి అంత ప్రేమ ఉంటే, అంత ఉలకబోసుకోదలుచుకుంటే మీరు రాసిచ్చేయండి. ఓకే, जीएचएमसी की जानिब से शहर भर में सफाई के लिए खुसूसी इक़दामात का सिलसिला जारी है और खुसूसी सैनिटेशन मुहिम पूरी शिद्दत के साथ चलाई जा रही है। बल्दिया की जानिब से सड़क के किनारों, डिवाइडर्स और दीगर मुकामात से कचरे की सफाई के लिए जो इक़दामात किए गए, इनका जायज़ा लेने और मज़ीद मौसर अंदाज में सफाई के लिए गुज़िश्ता 3 दिन से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। इस दौरान शहर के जुमला 300 वार्ड्स में जुमला 316 मुकामात पर यह मुहिम चलाई गई है और जुमला 269
मैट्रिक टन म्युनिसिपल कचरे की नक्काशी अमल में लाई गई है। इसके अलावा जुमला 73 तामीरी कचरे की नक्काशी भी अमल में लाई गई है। बताया गया है कि जोनल और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से फील्ड सतह पर इस खुसूसी सफाई मुहिम की निगरानी की जा रही है। हर मातहत अमले को जरूरी हिदायत दी जा रही हैं। GHMC हुकाम ने आवाम से अपील की है कि वो अपना कचरा सिर्फ स्वच्छ ऑटोस के हवाले करें, बाहर कचरा फेंकते हुए डस्टबिन का इस्तेमाल करें और खुले में कचरा ना फेंकें। हुकाम ने आवाम से इस काम में ताउन की अपील भी की है। हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने वाली बस के मुसाफिरीन आज सुबह करिश्माती तौर पर महफूज रहे जब बस में आग लग गई। ताहम चौकस ड्राइवर और क्लीनर ने तमाम मुसाफिरीन को बस से बाहिफाजत उतार लिया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने वाली एक खानगी बस में सुबह नंदी गामा के मुकाम पर आग लगने का वाक़या पेश आया। बस के इंजन से धुआं निकलता देखकर ड्राइवर और क्लीनर ने बस को रोक दिया और तमाम मुसाफिरीन को बाहिफाजत बस से उतार लिया। कहा गया है कि क्लीनर टोल प्लाजा पार करने के बाद बस से धुआं निकलता दिखाई दिया। बस में जुमला 39 मुसाफिरीन सवार थे जिन्हें बस से उतार लिया गया। ड्राइवर और क्लीनर भी उतर गए और देखते ही देखते बस शोलापोश हो गई। इस वाक़े में बस पूरी तरह जलकर खाकिस्तर हो गई। पुलिस मुकामी वाक़े पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने के इक़दाम किए गए। तमाम मुसाफिरीन के महफूज बचने और हुक्काम ने राहत की सांस ली। కేసర దాటిన తర్వాత టువర్డ్స్ హైదరాబాద్ విజయవాడ కేసర దాటిన తర్వాత ఇన్వెంటా కంపెనీ దాటిన తర్వాత ఇలా బస్సు ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరుగుతుందని చెప్పి మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ రావడంతో ఇమీడియట్గా మేము స్పాట్కి రావడం జరిగింది. ఇది ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు. మేము వచ్చేసరికి బస్సు తగలబడుతుంది. ఇమీడియట్గా మేము ఫైర్ సిబ్బంది అంతా కూడా మంటలను అదుపులో తీసుకున్నాం. ట్రాఫిక్ కూడా రెగ్యులేట్ చేసాము. ఇక్కడ ఎవరికి ఎటువంటి ప్రాణాపాయం ఏం జరగలేదండి. బస్సులో ఉన్న ఎవరికి కూడా ఎటువంటి ప్రాణాపాయం ఏం జరగలేదు. బస్సులో బ్యాక్ సైడ్ స్మోక్ వస్తుందని చెప్పి డ్రైవర్ పక్కన ఆపాడంట. ఆపి ఇమీడియట్గా ప్యాసింజర్లందరినీ దింపి వాళ్ళ లగేజ్లు కూడా తీసుకున్న తర్వాత ఇంక చూస్తే బస్సు అలా ఫైర్ స్టార్ట్ అయింది. ఇమీడియట్గా వాళ్ళు మాకు ఫైర్ ఇచ్చిన వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడంతో దీనిలోకి వచ్చాం. ప్రస్తుతానికి అయితే ఎటువంటి ప్రాణాపాయం లేదు. అంత ట్రాఫిక్ కానీ ఫైర్ కానీ కంట్రోల్. ఓకే. మొత్తం ఎంతమంది సార్ ప్రయాణికులు? మొత్తం 39 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారని చెప్పి డ్రైవర్ చెప్పారు. जमीयतुल मोमिनात का अजीमुशान फ़क़ीदुल मिसाल 35वां एक रोज़ा रियासती इस्लाही व तरबियती इज्तिमा बनुनवान औरत तालीमी मैदान में उर्दू मस्कन खिलवत में मुनक़द हुआ। इस बामक़सद इज्तिमा में नामवर उलमा, मशाइख़, दानिशवरान और असतिज़ा ने शिरकत की, जिनमें मेहमान ख़ुसूसी और सदर इजलास के तौर पर मुमताज़ मजहबी शख्सियात शामिल रहीं। इस मौके पर सदर नशीन तेलंगाना अक़लियती कमीशन तारिक अंसारी ने भी शिरकत की। मुक़र्ररीन ने अपने खिताबात में औरत के इस्लामी मुक़ाम, इसके हुकूक़ व फ़राइज़, असरी चैलेंजेस और समाजी बिगाड़ पर तफसीली रोशनी डाली और क़िरात व सुन्नत की रोशनी में इस्लाह माशरा पर जोर दिया। इज्तिमा में मदारुस व जमीयतुल मोमिनात के असतिज़ा, तलबा व तालिबात और मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद शरीक हुई, जबकि आखिर में दुआ और इस्लाही पैगाम के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में आया। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुख्तरान मिल्लत इस्लामिया की अजीम दीनी दानिशगाह जामियतुल मोमिनात मुग़लपुरा हैदराबाद का 35वां सालाना एक रोज़ा तरबियती इज्तिमा का इख्तिताम अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ लम्हात में अमल में लाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें लगभग 250 फारिगात को यहाँ पर दस्तारे तिलावत अता की गई हैं, असनदात तक़सीम की गई है और मेहमानान ख़ुसूसी के तौर पर जनाब सैयद तारिक अंसारी साहब, सदर नशीन अक़लियती कमीशन हुकूमत तेलंगाना और मौलाना हाफिज़ मुज़फ़्फ़र खान साहब, मौलाना मुफ्ती हसनुद्दीन साहब, मौलाना इरफानुल्लाह शाह नूरी साहब, मौलाना दुर्वेश मुहियुद्दीन साहब के अलावा दिगर मुअज़्ज़िज़ीन ने इस एक रोज़ा इज्तिमा में शिरकत फरमाई है और तमाम तालिबात को डायरेक्टर जामियतुल मोमिनात मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी साहब ने फारिगात से मुखातिब करते हुए कहा कि जहाँ कहीं भी आप तशरीफ़ फरमा है वहाँ पर अपने अपने सतह पर दीनी तालीम के मराकिज़ को क़ायम किया जाए। आप सनत लेने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ महदूद ज़िंदगी बसर करें, बल्कि बेहतरीन शख्स वो होता है
जो इल्म सीखता है और दूसरों तक पहुंचाता है। आप भी ज़रूर अपनी अपनी सतह पर इल्म दीन की इशाअत के लिए मसरूफ़ हो जाइए। ये ना समझें कि हमसे कुछ इससे नफ़ा हासिल हो, बल्कि ये दीन का काम अल्लाह उसके रसूल की खुशनुदी के लिए हासिल किया जाता है। इसी तरह मुख्तलिफ़ कोशों पर उन्होंने उजागर किया है और मैं इस मौके पर तमाम ज़राए अबलाग का भी शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस एक रोज़ा इज्तिमा को कामयाब बनाने के लिए आपने जो कोशिश की है, अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। आरमूर शहर के 20वीं वार्ड में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हिमायत याफ्ता कौंसलर उम्मीदवारा रुखसार बेगम मोहम्मद इलियास की कामयाबी के लिए जुमा की रात घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई गई, जिसमें अवाम की जानिब से खातिर ख्वाह रद्द-ए-अमल देखने में आया। इस इंतखाबी मुहिम में एमआईएम के पत्थरगट्टी कारपोरेटर सोहेल कादरी, एमआईएम महाराष्ट्र महिला सदर शीन बेगम के अलावा मुकामी कायदीन मोहम्मद जहीर अली सदर एमआईएम आरमूर व उम्मीदवार वार्ड 22 मोहम्मद समीर टॉन यूथ सदर व उम्मीदवार वार्ड 14 साबिक वार्ड मेंबर उबैदुल्ला और दिगर ने शिरकत की। इस मौके पर कायदीन ने रुखसार बेगम को तालीम याफ्ता और बासलाहियत उम्मीदवार करार देते हुए कहा कि वह अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए सरगर्म किरदार अदा करेंगी। खुसूसन वार्ड में आंगनबाड़ी मराकज़, उर्दू स्कूलों और बुनियादी सहूलतों की तरक्की को तरजीह देंगी। कायदीन ने अवाम से अपील की है कि 20वीं वार्ड की मजमूई तरक्की के लिए एमआईएम उम्मीदवार रुखसार बेगम के साथ साथ 22वीं वार्ड से मोहम्मद जहीर अली और 14वीं वार्ड से मोहम्मद समीर को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। जबकि रुखसार बेगम ने पार्टी के एतमाद पर इजहार तशक्कुर करते हुए वादा किया कि कामयाबी की सूरत में वो 20वीं वार्ड के अवाम के लिए 24 घंटे खिदमत अंजाम देंगी। तो अब मैं इस जलसे के जरिए इलेक्शन कमीशन और आरमूर पुलिस और एसीपी साहब को पूछना चाह रहा हूं, कल आरमूर के एमएलए पैरी राकेश रेड्डी सर्किट चौराहे पर आते हैं और वहां खड़े होकर मुसलमानों के खिलाफ बदजुबानी करते हैं और कहते हैं ये जो कोना है, कोने का मतलब ये मुसलमानों का जो एरिया है उसको देखो। वो हमारे हिंदू भाइयों को डरा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे पास 2 बच्चे होते हैं और उनके घर में 10 बच्चे होते हैं। तो मैं राकेश रेड्डी साहब आपको बोल रहा हूं, आपको कौन रोके, आप भी पैदा करो 10। कायदे ऐवान मुकर्ररा अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने हमेशा उन जालिमों की आंख में आंख डाल के बात की है और जो सच रहा है वो अवाम के दरमियान में बात करते हैं। हिंदुस्तान के अगर कोने में कहीं जुल्म ज्यादती होती है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब उनकी आवाज पार्लियामेंट में गूंजती है। क्या बात है आपका? क्या हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 540 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं? अगर हिंदुस्तान में मुसलमान बसता है तो 25 करोड़ से ज्यादा इस हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान बसते हैं। क्या वजह है कि मुसलमान की तादाद अगर 25 करोड़ है तो हमारे जो तादाद है पार्लियामेंट के अंदर 25 या 26 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौजूद है और उन 25 और 26 पार्लियामेंट में अगर कल जुल्म होता है तो सिर्फ एक ही आवाज को हम सुनते हैं जिसकी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। अरे लोग तो हमारे से वोट लेते हैं, ये हमारी इज्जतदार माँ बहनों और हमारी बेटियों ने जैसे जैसे बल्दियाती इंतखाबात अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो रहे हैं, आदिलाबाद शहर में सियासी सरगर्मियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं, जहां कौमी व इलाकाई जमातों के साथ साथ आज़ाद उम्मीदवार भी मजबूत अंदाज में मैदान में नजर आ रहे हैं। वार्ड नंबर 7 महल्ला के आर कॉलोनी से मारूफ समाजी कारकुन शेख सादुल्ला ने अपनी अहलिया को आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबी दौड़ में उतारा है, जिनका इंतखाबी निशान बेड यानी कि पलंग है। शेख सादुल्ला गुज़िश्ता 25 बरसों से किसी सरकारी ओहदे के बगैर बिला तफरीक मजहब व ज़ात अवामी खिदमात अंजाम देते आ रहे हैं।
ताहम BRS टिकट से महरूमी के बाद मुकामी अवामी मुशावरत के नतीजे में आज़ाद हैसियत से मैदान में उतरे। इंतखाबी मैदान के आगाज के साथ ही KRK कॉलोनी के हिंदू मुस्लिम जात दलित और दिगर बरादरी पर मुश्तमिल अवाम की जानिब से इन्हें गैर मामूली हिमायत हासिल हो रही है। मीडिया से गुफ्तगू में शेख सादुल्ला ने कहा, कामयाबी के बाद वार्ड में बुनियादी सहूलतों की फराहमी, पक्की सड़कें, ड्रेनेज निज़ाम, पीने का पानी, स्ट्रीट लाइट्स, तालीम और सरकारी स्कीमात के मौसर नफाज को यकीनी बनाया जाएगा। और आखिर में अवाम से अपील की गई कि 11 फरवरी को इंतखाबी निशान पलंग पर वोट देकर शेख ज़ैबुन्निसा को कामयाब बनाएं। मैं इंडिपेंडेंट खड़े रहने के मेरा मकसद एक ही है, मैं KRK कॉलोनी में यही मेरे हिंदू मुसलमान भाइयों के साथ, क्रिश्चियन भाइयों के साथ, दलित भाइयों के साथ 25 साल से यहीं रह रहा हूँ। इसीलिए मेरे को मेरे मोहल्ले के हर वो प्रॉब्लम से, हर वो तकलीफ़ से मैं मालूम, इसके ऊपर मेरे को नॉलेज है। अभी तक 25 साल से जितने भी पार्टीज़ के कैंडिडेट जीते, चाहे नेशनल पार्टी हो दो, चाहे स्टेट पार्टी हो दो, वो लोग उनको जिताए, हमारे मलयाले यही ख्वाहिशें जिताए थे कि हमारा गांव डेवलप होगा, रोड, नाली, करंट, पानी का हमको सहूलत मिलेंगी। लेकिन ये 25 साल में कोई पार्टी हमारा काम नहीं करी। इसीलिए मैं कोई पार्टी से लिंक ना रखते हुए इंडिपेंडेंट, मेरे माँ बहनें और मेरे भाइयाँ, मेरे महल्ले वाले बोले, सादुल्ला भाई आप खड़े रहो, हम आपके साथ हैं, हम आपको जिताते, आपको कोई पार्टी से संबंध नहीं है, हम आपको इंडिपेंडेंट जिता लेते। बोलने से मैं KRK कॉलोनी में इंडिपेंडेंट से खड़े रहा और मेरा निशान है पलंग। और मेरा मकसद एक ही है कि मेरा गाँव, मेरा मोहल्ला डेवलप होना, एजुकेशन होना, नाली, करंट, पानी, रोड होना। अब कुछ मोहल्ले में मेरे माँ बहनों को अगर डिलीवरी है या मेरे कोई माँ भाई को हार्ट अटैक आ गया तो हमारे इतना बुरा हाल है वार्ड नंबर 7 का, हमारे पास एम्बुलेंस नहीं आता, गाड़ी नहीं आती, खुद की मोटरसाइकिल घर में नहीं लिया सकते। इसीलिए मैं सभी मोहल्ले वालों से अदबन गुजारिश करता हूँ, मेरे हिंदू भाइयों से भी गुजारिश करता हूँ कि आप पार्टी को ना देखते हुए वर्कर को देखिए, काम करने वाला देखिए। हम कुछ ना रहते हुए 25 साल कौन सी भी गवर्नमेंट रहने दीजिए, उनको बोल के, बता के, झगड़े करके कई बार हमारे ऊपर केसेस हुए। केसेस को भी ना डरते हुए महल्ले वालों के साथ रह के स्कूल बिल्डिंग के काम किया हूँ मैं। आदिलाबाद के वार्ड नंबर 44 से भी समाजी खिदमात में सरगर्म मोहम्मद निजामुद्दीन काजी एक मजबूत आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उभर कर सामने आए हैं, जिनका इंतखाबी निशान बेड है। मोहम्मद निजामुद्दीन काजी गुज़िश्ता 20 वर्षों से रोटी बैंक के जरिए गरीबों और ज़रूरतमंदों की मुसलसल खिदमत कर रहे हैं, जिसके बायस अवाम में इनकी अच्छी साख और पहचान कायम हो चुकी है। उन्होंने इंतखाबी मुहिम का आगाज अपनी वालिदा से मुलाकात और इनकी दुआओं के साथ किया, जिसे अवाम ने नेक शगुन करार दिया। अवामी हलकों में ये तासुर आम है, लेकिन कांग्रेस, BJP, BRS और मजलिस के उम्मीदवारों की मौजूदगी के बावजूद बड़ी तादाद में वोटर्स का झुकाव मोहम्मद निजामुद्दीन काजी की जानिब है और इस मर्तबा खिदमत की बुनियाद पर वोट फैसला कुन साबित हो सकते हैं। पूरे पार्टियां और मैं इंडिपेंडेंट हूँ। आप समझ सकते हैं, अभी कोई भी पार्टी जीतेंगी तो एक पार्टी का यहाँ पे चेयरमैन बैठने वाला नहीं है। अगर चाहे BJP का बैठने दो, कांग्रेस का बैठने दो, MIM का बैठने दो या और कोई पार्टी का बैठने दो, एक पार्टी का कोई भी कैंडिडेट नहीं बैठता। लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो रहता, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को इतना ये रहता कि जो इक्वल टू पावर में जो भी रहता, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उसको सपोर्ट करके अपने वार्ड की तरक्की के लिए काम लेके आता। और इससे पहले बल्दिया इंतखाबात में, पिछले इलेक्शन में भी हमने यहाँ से इंडिपेंडेंट से जिताए थे और वो भी निशान ब्याटी था और 6 नंबर पे ही था। इंशाल्लाह मैं अभी भी उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी भी मुझे जीतेंगे, वोट इधर उधर फुट जाएंगे, वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग मुझे इंडिपेंडेंट जिता के इक्वल टू चेयरमैन पोस्ट के लिए यहाँ पे। और एक चांस ये है भाई साहब कि अभी वार्ड नंबर 44 से वाइस चेयरमैन डिक्लेयर हूँगा। आप लोग के हाथ में अगर इंडिपेंडेंट जिता के मुझे भारी अक्सर से कामयाब करते तो ये जीत मेरी जीत नहीं है, ये अवाम की जीत है, ये सबकी जीत है, आपकी जीत है, छोटे बच्चे की जीत है, बहनों की जीत है, मेरे भाइयों की जीत है। इंशाल्लाह आप लोग समझ सकते हैं कि मैं क्या मेहनत कर रहा हूँ और एक एक चीज़ के लिए प्रॉब्लम हो रहा है इंशाल्लाह। और मैं आप लोगों के लिए कितनी भी मुश्किल झेलने को तैयार हूँ। रात में आप 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, कितने भी बजे मुझे काम के लिए बोल सकते, मैं कभी भी तैयार हूँ इंशाल्लाह। वार्ड नंबर 44 के आवाम से अभी क्या अपील करेंगे? मैं वार्ड नंबर 4 के आवाम से यही अपील करूँगा कि वो लोग मुझे
मेरे काम को देखे और मैंने इससे पहले भी बहुत से यहाँ पे सोशल वर्क प्रोग्राम करा। राशन कार्ड हो गए, इलेक्शन कार्ड हो गए, आधार कार्ड हो गए और हेल्थ कैम्प हो गया। ऐसे ये रोड साफ़ करना, पूरे रोडों के लाइट लगाना। अभी मैं पिछले जब से मेरे 2-3 महीने से वर्क कर रहा हूँ। रोटी बैंक आदिलाबाद फाउंडेशन के नाम से भी मैं सेल्फ चलाता हूँ और उसमें भी 1 रुपया आज तक मैंने डोनेशन किससे भी नहीं लिया। मैं सेल्फ चलाता हूँ और मैं अब वार्ड नंबर 44 की आवाम से ये उम्मीद करूँगा कि मुझे वो लोग आप एक मौका दीजिए और मैं काम उनके मौके का पूरा उनको उतर के बताऊँगा उनके पास। बेगमपेट में ट्रैफिक पुलिस की बरवक्त और इंसानी दोस्त कार्रवाई ने एक अखब यानी चील की जान बचा ली। एक चील दरख्त की शाखों में बंधी नोकीली और ममनुआ मांझा में फंस गया था। वाक़े को देखते ही एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक मलकाजगिरी मोहतरमा ए लक्ष्मी और असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक पुलिस अमले के साथ मिलकर निहायती एहतियात से चील को बचाया और इसके पंजों में फंसा मांझा निकालकर जरूरी निगहदाश्त की, जिसके बाद अखब कुछ देर में बाहिफाजत उड़ गया। इस मौके पर अहदेदारों ने अवाम को खबरदार किया कि ममनुआ मांझा का इस्तेमाल परिंदों, जानवरों और इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है और शहरियों से अपील की गई कि कानून की पाबंदी करते हुए इसके इस्तेमाल से गुरेज करें, जबकि इस वाक़े को ट्रैफिक पुलिस की समाजी जिम्मेदारी और इंसान दोस्ती की बेहतरीन मिसाल करार दिया जा रहा है। इख्तिताम से ख़बर एक नज़र हेडलाइंस पर। मुनहरफ अरकान पर कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट का तेलंगाना असेंबली स्पीकर को आखिरी 3 हफ्तों का अल्टीमेटम। मुद्दत खत्म होने पर तौहीन अदालत की होगी कार्रवाई। नामपल्ली में तेलंगाना फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में अचानक आग। अहम फाइलें और कंप्यूटर्स मुतासिर होने का खदशा। लैब आतिशदगी पर केटीआर के संगीन शकूक। वोट फॉर नोट केस के शवायद मिटाने का खदशा। निजामाबाद में जलसे के दौरान सीएम रेवंत रेड्डी का बीजेपी व बीआरएस पर साजबाज का संगीन इल्जाम। अक़लियतों के 4% तहफ़्फ़ुज़ात के तहफ़्फ़ुज़ का किया अज़्म। फर्ज की राह में जान कुर्बान करने वाले अहलकारों के खानदानों के लिए तेलंगाना हुकूमत का बड़ा कदम। सीएम ने शहीद कांस्टेबल्स के लाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए के चेक्स किए हवाले। मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन आइन के खिलाफ 4% मुस्लिम कोटे पर बीजेपी का एतराज। जी किशन रेड्डी का सीएम रेवंत रेड्डी पर अक़लियती खुशनुदी की सियासत का इल्जाम। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुज़दलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करे। महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।